Hello students, this is our sixth chapter, plant-water relation. In this chapter, we will study that what is a relation of water and plant, how plant get water, and we will study several various processes. So, before starting the chapter, we have to recall some point. First is which are the various parts of plant body. What are the functions of various parts of plant body? Which plant tissues are involved in transport of water and minerals? Then you can say me what are the various parts of plant body? Can you get that? This is a plant. Okay? And here it has a various parts. Flower. The role of flower is flower help in reproduction, leaf perform photosynthesis, fruit it protects the seeds, stem supports the plant, then it comes the root. The work of a root is absorb water and minerals. Clear? Plant mainly have five types: flower, leaf, fruit, stem and roots. So we are going to study in this chapter about roots. How root absorb water and mineral. We are going to study about that. So from leaves to the stem, it is called as shoot system. And from stem to the roots, it is called as root system. So plant also have two system. One is shoot system, another is root system. Then let's start with the chapter, students. Plant obtain a variety of substances like water, minerals, nutrients, food and gases like O2 and CO2 from its surrounding. प्लांट्स के पास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जैसे वाटर, बट उसे ये सब्सटेंसेस मिलते कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल के थ्रू से ये सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं, प्लांट ऑब्टेन करता है, लाइक वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड and gases. Gases may be O2, CO2 and there are many different gases also. Okay, we are going to study about that type of gases in further chapters. Right here you remember O2 and CO2. This is the basic concept what we have to remember. Productivity in plant is mainly affected by the non-availability of water. अगर productivity of plant है, मतलब plant में growth चाहिए, तो it is important कि हम plant को daily water करें. अगर water नहीं किया, then plant वो जो न्यूट्रिएंट्स है, ये मिनरल्स है जो सॉइल में है, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. क्लियर? सो प्रोडक्टिविटी इन प्लांट इज मेनली अफेक्टेड बाय द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइफ. ओके, water is considered as elixir of life. It is considered as elixir of life. Water constitutes almost 90 to 95% of most plant cell and tissues. प्लांट का जो सेल होता है और उसके टिश्यूज़ होते हैं, उनमें 90 से 95% सिर्फ वाटर होता है. ओके, सेल बहुत ज़्यादा जब एक साथ मिल जाते हैं
तो वो लोग टिश्यू बनाते हैं, इतना तो हम सबको पता है स्टूडेंट्स। तो जब प्लांट सेल से टिश्यू देख रहे हैं तो सेल कंसीडर करें या टिश्यू कंसीडर करें, दोनों में 90 से 95% ऑफ पोर्शन सिर्फ वाटर रहेगा। ओके, वाटर हेल्प्स द सेल टू मेंटेन द टर्जिडिटी एंड शेप। वाटर के वजह से वो सेल जो है वो उतना टर्जिड रह पा रहा है और एक डेफिनाइट शेप ले पा रहा है। क्लियर? And then it shows following properties due to which it has great biological importance. What are their properties and why are they biologically that important? We will study it in the next slide. Okay students, then these are the properties of water. It is in the liquid form at room temperature पे प्लांट की जो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो प्लांट में यूज़ हो रहा है। ओके, इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर एंड इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स। ओके, so it is in the liquid form at room temperature and is the best solvent for most of the solutes. Clear? And it is inert inorganic compound. ये बनता है inert inorganic compound से with neutral pH. इसका जो pH रहता है वो neutral होता है, okay, which is in pure form. And then due to this, water is best transporting medium for dissolved minerals and food molecules. इस वजह से वाटर जो होता है वो बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है। क्यों? क्योंकि उसका पीएच न्यूट्रल है और उसके अंदर इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, एंड ड्यू टू दिस वाटर इज़ बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम. Because of its neutral pH, water is best transporting medium for dissolved minerals. Clear? And food molecules. It is best aqueous medium for all biochemical reactions. Best aqueous medium है। aqueous medium मतलब एक ऐसा watery medium पूरे बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए अकरिंग इन द सेल. इट इज़ एन असेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. एंड वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस कितना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट? देन वाटर हैज़ स्पेसिफिक हीट. उसके पास एक हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन. उसके ये क्वालिटीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइम के बाद वो हीट कर सकता है. वाटर हीट करता है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है उसकी. देन एक टेम्परेचर के बाद वो वेपराइज भी होता है, वो वेपर में भी कन्वर्ट करता है अपने मॉलिक्यूल्स को. एंड इट इज़ ऑल्सो अ हाई हीट ऑफ फ्यूजन. इट कैन बी बोथ, इट कैन बी फ्यूजन टू. ड्यू टू दिस इट एक्ट एज थर्मल बफर. इस वजह से वो थर्मल बफर के जैसे एक्ट करता है. दिस वेरियस प्रॉपर्टीज़ आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. ये जो वेरियस प्रॉपर्टीज़ है आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. क्लियर? वाटर मॉलिक्यूल्स हैव good adhesive and cohesive forces of attraction. वाटर मॉलिक्यूल्स के पास good adhesive
and cohesive forces of attraction है, and due to high surface tension and high adhesive and cohesive force, due to high surface tension, due to its high surface tension and its adhesive and cohesive force, कि उसके अंदर adhesive होने का भी force है और cohesive होने का भी force है, it can easily rise in the capillaries. adhesive और cohesive यही है ना कि rise और glow कर रहा है. तो due to this high surface tension and high adhesive and cohesive force, it can easily rise in the capillaries. It is therefore a significant molecule. एक significant मतलब एक important molecule है that connect physical world with biological processes. तो ये है हमारा properties of water. वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बिफोर स्टार्टिंग विद द एब्जॉर्प्शन के एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. फर्स्टली क्या लिखना है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, देन सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज़ के इट हैज़ अ न्यूट्रल pH व्हेन इन प्योर फॉर्म. फिर उसके बाद जो उसके एक्विशियस मीडियम है फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल. ये असेंशियल रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस. देन यू विल राइट वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, high heat of vaporization and high heat of fusion, and therefore because of all this it acts as thermal buffer. These various properties are due to hydrogen bond between the water molecule. Water molecule have good adhesive and cohesive forces of attraction, and because of this it can easily rise in the capillaries. Therefore a significant molecule. It is considered as a significant, that is the most important molecule that connects physical world with biological process. Then now students we will study about water absorbing organs. प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने वाले ऑर्गन्स कौन से हैं, क्लियर. देन फर्स्ट इज़ द रूट. रूट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन. इतना तो पॉइंट क्लियर है. रूट ही है, रूट इज़ द मेन ऑर्गन, we can say primary organ of water and mineral absorption. And terrestrial plants, terrestrial plants मतलब terrestrial plants is a plant that grow in or from the land. Okay, and other types of plants are aquatic, that is living in water. एपीफाइटिक होते हैं, लिविंग ऑन ट्रीज. ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं. देन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल. ओके, दैट आर ग्रोन ऑन लैंड. वो प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल. हाउएवर एपीफाइटिक plants like orchids absorb water vapors from air with the help of epiphytic roots having special tissue called velamen. Clear? That is, root is the main organ of water and mineral absorption. But यहाँ पे दो types of plant का discussion हो रहा है. In terrestrial plants, प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल, जैसे नॉर्मल प्लांट्स है जो लैंड पे ग्रो हो रहे हैं. देन इन एपीफाइटिक प्लांट्स, एपीफाइटिक प्लांट्स आर लिविंग ऑन ट्रीज. ओके, जैसे कि ऑर्चिड्स एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर. दे एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स that is from air with the help of epiphytic root
having special tissue called velamen. Then, typical root is divisible into 4 different region. एक टिपिकल रूट की हम लोग बात करते हैं तो टिपिकल रूट के 4 डिफरेंट रीजन्स होते हैं. ओके, इन द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, एपिडर्मल सेल्स, एपिब्लेमा सेल्स. Epidermal cells are also called as epiblema cells from unicellular hair like extensions called root hair. You have seen what is root hair. Root पे hairs like structure present होते हैं. So that structures are called as epiblema cells from epidermal cell. They are unicellular hair-like extensions. Unicellular hair-like extensions, and they are called as root hairs. Clear हो गया? Then this is a root tip showing hair zone. ये ऊपर है maturation zone जहाँ पे mature हो रहा है stump के साथ वो attached होगा अभी. ओके, फिर ये जो रूट हेयर जोन है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये रूट हेयर है उसी के नीचे. फिर है जोन ऑफ इलोंगेशन. फिर सबसे नीचे है पेरिस्टेमेटिक रीजन. व्हाट इज पेरिस्टेमेटिक रीजन? पेरिस्टेमेटिक रीजन और पेरिस्टेमेटिक टिश्यू is a type of tissue that is found in plant. It consists of undifferentiated cells and they are capable of cell division. Clear? They consist of undifferentiated cells and they are capable of cell division. Cells in the meristem can develop into all other tissue and organs that occur in plants. ये है हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन. देन लास्ट में है रूट कैप. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रूट कैप? रूट कैप इज़ यूज्ड एज टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग टिप्स इन प्लांट्स. रूट कैप का क्या वर्क है कि कैप है, प्रोटेक्शन देती है. इट प्रोटेक्ट द ग्रोइंग टिप्स इन प्लांट. इट सिक्रेट म्यूसिलेज टू ईज द मूवमेंट ऑफ द रूट. वो क्या सिक्रेट करता है? म्यूसिलेज सिक्रीट करता है ताकि जो मूवमेंट ऑफ रूट है वो ईजी हो जाए. ईजी थ्रू रूट का मूवमेंट कहाँ होता है? थ्रू सॉइल, and may also be involved in communication with the soil microbiota. The purpose of the root cap is to enable downward growth of the root, with the root cap covering the sensitive tissue in the root. ये है root cap के functions. Then coming to structure of root hair. Okay, root hair एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, राइट. एक्सटेंशन मतलब प्रोलॉन्गेशन या इलोंगेशन ऑफ एपिब्लेमा सेल. एपिब्लेमा सेल्स कौन से? एपिडर्मल सेल्स. पीछे देखे थे हम लोग ने. यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स ही एपिब्लेमा सेल्स है. देन each root hair may be approximately 1 to 10 mm long. एक रूट हेयर approximately 1 to 10 mm long है and it is tube like structure. ओके, यहाँ पे दिख रहा है ना, हेयर स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ईच रूट हेयर 1 to 10 mm long होती है and it is a tube like structure. I'll highlight it. 1 to 10 mm long and tube like structure. It is colorless, unbranched, short leaved and very delicate. Roots जो होते हैं वो colorless होते हैं,
जो हम लोगों को उसका ब्राउन कलर दिखता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सॉइल, उस पर सॉइल लगी होती है। अगर उसे पानी में डाल के रखेंगे एंड देन उसका जब मिट्टी पूरी निकल जाएगी रूट से, तब हम लोग उसका कलर देखेंगे तो हमें कलरलेस मिलेगा। रूट्स आर कलरलेस, दिस रूट हेयर्स आर कलरलेस, they are unbranched, they are not branched, they are unicellular, then they are short lived, उनकी लाइफ स्पेन इज शॉर्ट एंड इट इज़ वेरी डेलिकेट, इफ़ एकदम हल्का सा भी टच किए तो भी वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे आर दैट मच डेलिकेट। देन इट हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इमेज में दिख रहा है वैक्यूल दिखाई दे रहा है, इधर वैक्यूल दिखाई दे रहा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, सराउंडेड बाय अ थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म। वैक्यूल के सराउंडिंग में पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म है, इमेज में अच्छे से दिख रहा है, ये है वैक्यूल, वैक्यूल के सराउंडिंग में है साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज वैक्यूल एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, क्लियर। देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थिन सेल वॉल विच इज़ टू लेयर्ड, साइटोप्लाज्म है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है एंड देन थिन सेल वॉल है which is two layered. Where is plasma membrane? Plasma membrane of a vacuolization zone. ये वैक्यूल जो है उसी के सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड इट इज़ ऑफ्टन रिलीव्ड एरियाज ऑफ हेक्सागोनली ordered particles. Such patterns of particles were absorbed in chemically fixed and unfixed root hairs. That is the reason यहाँ पे plasma membrane नहीं है। Then thin cell wall है, cell wall दिख रहा है। Then उसके बाद cell wall जो है वो doubled layered है, okay? एक outer होगा, एक inner होगा। Outer layer is composed of pectin and inner layer is made up of cellulose. पैक्टीन और सेल्यूलोज दोनों भी के भी बारे में हम लोग ने पहले पढ़े हैं। पैक्टीन क्या है? पैक्टीन इज़ अ, पैक्टीन के बारे में पहले पढ़े थे, वो एक जेलाटिनियस पॉलीसेक्राइड है विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के आउटर लेयर में, और इनर लेयर में है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तो इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। देन सेल वॉल इज़ फ्रीली परमिएबल बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, सेल वॉल जो है वो पूरी तरीके से परमिएबल है, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबल, सिलेक्टिवली सिलेक्टेड जगह पे परमिएबल है। ओके, what is permeable? Permeable is allowing liquid or gases to enter inside the cell. तो सेल वॉल के सराउंडिंग में जितने भी बाहर सब्सटेंसेस, सेल वॉल पूरी तरीके से परमिएबल है, वो बाहर के गैसेस को या लिक्विड को अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ करता है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी नहीं करती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ कुछ जगह पे उसने परमिएबल का अलाउंस छोड़ा है। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। What we have studied is that is root hair is cytoplasmic extension of epiblema cell, और हर रूट हेयर जो होता है वह अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 मीटर लॉन्ग होता है एंड इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस हेयर रूट हेयर इज़ कलरलेस, अनब्रांच, शॉर्ट लिव्ड एंड वेरी डेलिकेट। इसके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है surrounded by a thin film of cytoplasm, plasma membrane and thin cell wall which is two layered. Outer layer is composed of pectin and inner layer is made up of cellulose.
cell wall is freely permeable and but the plasma membrane is selectively permeable. Then water available to roots for absorption. कौन सा वाटर अवेलेबल होता है रूट्स को फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, ये टॉपिक है हमारा. सो हम लोग अभी ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं. टुडे व्हाट वी हैव स्टडीड इज़ जस्ट अ डेफिनेशन. फर्स्ट we have studied parts of plant, then plants properties of water absorbing roots, and we have studied about roots and structure of root hairs. So we will stop on this topic. In the next video we will continue our next topic, that is water available to roots for absorption. So thank you students, and study everything thoroughly and perfectly with the diagrams, and naming is important.